मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ गॉड ग्रेस चर्च जमशेदपुर के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आराधना की ओर चलते हैं। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड माय लॉर्ड। Thank you for all the gifts and love that you have given my Father. Thank you for providing all the goodness. Thank you for all those safetiness during this pandemic situation also, my Lord. Your hands were always on us. In day-to-day life, we are being meeting several number of people. We are moving from one destiny to another and one city to another. But your blessings and your hands are always on us. Thank you, my Lord, that you have saved our job. You have been providing proper food to eat, my Lord. There are several number of people who are not getting, my Lord. But we as disciples, we are getting every day with the proper food and the job which you have provided, my Lord. Thank you for all those things, my Lord. Thank you for all those surprises and gifts and the miracle that happening each day in our life. In Matthew 7:7 says, ask you will get, seek you will find, and knock the door will be opened. So we are asking you, my Lord, whatever the issues and the problems that we are facing day to day in our life, in our offices, in our marriages, in our families, in the body, my Lord, the health issues, my Lord. We are asking you to answer to our prayer, my Lord. I surrender each and everything in your hand, my Lord. Whatever the sins that we have done, my Lord, please forgive us. Pure us from your blood, my Lord. Purify us from your blood, my Lord. I keep each and every person in your hand, they who are watching live right now, my Lord. Whatever the issues they are having in their body, the health issues, the family issues, the marriage issues, or any other personal problems, my Lord, and keeping everybody in your hand, my Lord. Take away all the pains from their life, my Lord. Take away all the pains from their body, my Lord. Whoever is listening today, my Lord, answer to their prayer, because we all are waiting for the prayer to be answered, my Lord. I keep each and every needs, requirements, all the issues in your hand, my Lord. Please answer to our prayer, keeping all the issues in your hand, my Lord. In Jesus' mighty name, amen. प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और अपने अपने घरों में हम लोग सब बैठे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर आज की प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए आनंद और उत्साह से प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति और महिमा देते हुए जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि पवित्र दिन में परमेश्वर हर एक को तूने संभाला है और आज फिर से प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए तेरा अनुग्रह, तेरी दया अपरंपार है कि हमारे जीवन में ये पवित्र दिन दिखाया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक को अपने मन को तो तैयार कर ताकि तेरी आराधना करने के लिए तेरी उपस्थिति में प्रभु नियंत्रण होकर बैठने पाए और तुझे धन्यवाद दे सके। और सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए खुदावन प्रार्थना और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हमें प्रस्कुल्य में से 34 नंबर गीत है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का
धन्यवाद करे, अपने सारे हृदय से वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे, अरे ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे, अरे ललकारे। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको आसान, वो है हमारा आधार, जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको आसान, वो है हमारा आधार, उस जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान, उसी की हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें, अरे ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें, अरे ललकारे। Yes. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आनंद साथ परमेश्वर की स्तुति करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिवा और नशा, उसकी प्रशंसा करें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिवा और नशा, उसकी प्रशंसा करें, वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा, वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें, अरे ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें, अरे ललकारे। Praise the Lord. फिर से एक गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तालियों के साथ इस गाना को गाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यही गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे,
आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें, सारी बातों के लिए परमेश्वर के धन्य कहें और अपने अपने मनों को प्रभु के सामने हम तैयार करें और पूरी रीति से प्रभु की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। और जब आराधना करते हैं एक मन एक चित होकर प्रभु यीशु मसीह की उस सुंदरता में पूरी रीति से खो जाएं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा और आदर देने के लिए आत्मा के द्वारा हम प्रेरित हो और हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। आराधना करने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में महसूस होता है और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में फ्रीडम हो जाते हैं और पूरी रीति से परमेश्वर की स्तुति के लिए तैयार पाए जाते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, 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 स्तुति, स्तुति, महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक जन अपने मुंह को खोले, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान और अति सामर्थ्यवान है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उसका धन्य करो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। आज की आराधना प्रभु के सामने हमारा करना कभी व्यर्थ ना होने पाए, लेकिन आराधना के द्वारा पूरी रीति से हमारे फ्रीडम हो जाए, आजाद पाए जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का प्रेम को, प्रभु का अनुग्रह को, पर प्रभु की दया अपरंपार है। हालेलुया, हालेलुया। उसका गुणवाद करें, उसको धन्य कहे, धन्य कहे, धन्य कहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आराधना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस, प्रेज द लॉर्ड। खुदा
हालेलुया। धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आइए हम आराधना करें, प्रभु की स्तुति करते रहे, हम बातचीत कर प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। सचमुच में प्रभु महान है, उसकी करुणा अपरंपार है। आइए हम फिर से प्रभु का समर्पित हो जाए, प्रभु के सामने हो तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस। आमेन। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू ग्लोरी। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. प्रभु की उपस्थिति। Praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद। Hallelujah. Thank you. Glory to Jesus. Amen. Hosanna. Thank you, Jesus. Amen. Jesus. करुणा से नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Praise the Lord. करुणा, प्रभु की करुणा हालेलुया अपरंपार है। परमेश्वर दया का धनी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओह सलाम। यस, थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। आमेन। यस, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम कोई प्रभु है नहीं। घुटना में टेको बस तेरे सामने,
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो प्रभु। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आज की आराधना तुझे भाई, हर एक जीवन में तू कब्जा कर, हर एक जीवन में तो अद्भुत चमत्कार कर, हर एक जीवन से हर प्रकार की बुराई और पापों को दूर करके प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धो के शुद्ध और पवित्र कर। आज की आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे भाई। ओ हालेलुया, ओ रबानी सिंदला रबा, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं राजा, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, किसी उपकार को तू ना भूलना। हमारे जीवन में तूने अनगिनत उपकार किए हैं प्रभु। तेरी स्तुति और आराधना हो, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति महिमा। आया प्रत्येक जन फिर से अपना पूरी रीति से समर्पित हो जाए प्रभु के सामने और प्रभु की आराधना करे, स्तुति करे, हालेलुया। अपने मुंह को खोले, परमेश्वर की स्तुति करे। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद, हालेलुया। धन्य 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 कहे प्रभु के सामने। धन्यवाद देते राजा, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं प्रभु। आज की आराधना में प्रभु तो हमारे साथ रहा। आज की आराधना पे परमेश्वर पिता प्रभु, हम प्रत्येक को धन्यवाद देते हुए खुदावन में प्रार्थना करती हूँ। आज की आराधना में तेरा कार्य अद्भुत रीति से तूने किया है, मैं तेरा धन्यवाद देती प्रभु। मैं प्रार्थना करती हर एक जीवन में तूने काम किया है, हर एक जीवन में तूने अद्भुत रीति से बातचीत किया है, मैं तेरा धन्यवाद देती प्रभु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार व्यक्ति बैठा है, कोई हर प्रकार की चिंता लेके बैठा है, कई प्रकार की तनाव है, कई प्रकार की परेशानी है, तकलीफ है, यीशु नासरीत के नाम से मैं दूर करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक का जीवन तेरे सामने फिर से समर्पित कर देती प्रभु। अरे हर एक से तू हमेशा प्रभु व्यवहार कर, तेरी उपस्थिति में बने रहे और तेरा धन्यवाद और स्तुति रूपी भेंट हमेशा प्रभु तेरे सम्मुख रखे और तुझे धन्यवाद दे सके। मैं प्रार्थना करती हर विश्वासियों को, हर लोगों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। दयालु प्रेमी परमेश्वर, जहाँ भी तेरे वचन को सुनते होंगे, जहाँ भी परमेश्वर तेरी वाणी को सुन रहे हैं, खुदावन हर एक के काने और आंखें प्रभु खुल जाने पाए, तेरी वाणी को सुन सके। धन्यवाद देती प्रभु, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। पवित्र आत्मा हर एक से बोल और बातचीत कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तो उपाय कर। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए खुदा प्रार्थना में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुना प्रार्थना, आमीन। भजन संहिता 64 अध्याय, उसका 1 अध्याय से लेकर हम अंतिम अध्याय 10 तक पढ़ेंगे। ये परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अता है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे।
और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले पढ़ाई करेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष देवे। आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान जीते दयालु परमेश्वर के लिए के नाम से प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने अपने अनुग्रह में हम सबों के जीवन सुनहरा अवसर दिया है कि आज के पवित्र पाक दिन में उसके पवित्र घर में हम सब इकट्ठे होकर के उसकी नज़दीकी में आ सके और अपने जीवन से प्रभु की हमदो सिताइश कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति हमेशा हम लोग के जीवन के साथ साथ बनी रहती है। जो हमेशा हर दुख तकलीफ परेशानी कठिनाई बीमारी चिंताओं में अपने बेटे और बेटियों को संभालता, ढाढ़स हिम्मत देता है, साहस के साथ आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ विश्राम वार देखने का अवसर देता है ताकि हम एक जगह इकट्ठे होकर के अपने जीवन से प्रभु की हमदो सिताइश कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों की तमाम आशीषों के लिए। हर एक कार्य प्रभु ने आशीष दिया, मदद किया, अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हम धन्यवाद देते अवसर दिया है। हम प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीते दयालु परमेश्वर, सारे आशीषों के देने वाले तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए जो तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर हमारे जीवन सुनहरा अवसर दिया कि सभी प्रिय लोग के साथ इकट्ठे होकर के आज के पवित्र पाक दिन में हम सब तेरी नजदीकी में आ सके और अपने जीवन से तेरी हमदो सिताइश कर सके। आज के सुंदर अवसर पे धन्यवाद देते हैं और आज के विश्राम वार पर भी तेरा आशीष का हाथ रहे। हर एक कार्य को अपने हाथ में लीजिए ताकि हर एक कार्य के द्वारा तेरी महिमा हो। हर एक कार्य को अपने आत्मा की अगुवाई में चलाने में हम सबों की सहायता और मदद करिए। जितने प्रिय लोग आज तेरी आराधना प्रार्थना उपस्थित हैं उन सबों पर भी तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ बनाए रखिए। तमाम दुख मुसीबत परेशानी से रक्षा करिए। हमारे देश पर भी तेरा अनुग्रह और आशीष का हाथ रहे। सब कुछ तेरे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु के महान अनुग्रह के लिए। प्रभु ने महान अनुग्रह में हम सबों को अपनी नजदीकी मिलाया, हम सब इकट्ठा किया है ताकि हम उसके प्रेम को और उसके प्रेम भरे कार्य को अपने जीवन में जान सके, पहचान सके, जो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास अपने वचन के माध्यम से हम लोग के जीवन में कराया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने अपने नाम से कहीं ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया और जब वचन का पालन करते, आदत करते, उसी वचन से प्रभु हम लोग को हिम्मत भी देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है और हर एक परेशानियों पर विजय दिला करके जीवन की इच्छाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करता है ताकि अपने जीवन की राह में संपूर्ण तुझ पे भरोसा विश्वास रखते हुए अपने जीवन के तमाम परिश्रम के माध्यम से हम सब तेरी महिमा का सुंदर कारण बन सके। हम धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु के महान अनुग्रह में और साथ ही साथ आज का जो वचन प्रभु हम लोग के बीच में रखना चाहता है। आज प्रभु अपने जीवन से, अपने वचन के द्वारा से हम लोग के जीवन से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमेशा हम लोग की चिल्लाहट को, हमारी पुकार को, हमारी दर्द को हमेशा सुना और हमेशा हमारी चिल्लाहट में, हमारे दर्द में हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के सामने अपने दुखों को रखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, प्रभु हमारी पुकार को भी सुनता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ वचन में एक जगह लिखा है मरकुस 25 सुसमाचार 10:47 पद में, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अंधा बरतमई एक ठो प्रभु के पास आया था ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ यरूशलेम से यरीहो को जा रहे थे और वो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती जो दोनों आंख से अंधा था और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सुना था कि हम प्रभु के पास एक दिन अब जाएंगे, अपने दुखों को बताएंगे, हम प्रभु के सामने अपने दर्द को रखेंगे, क्योंकि वो दोनों आंख से अंधा था और वो जानता था कि अगर प्रभु पर हम पहुंच गए तो प्रभु हमारी तकलीफ को दूर करेगा, हमको देखने की शक्ति देगा कि हम देख सकेंगे, क्योंकि प्रभु ने फलस्तीन देश में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए थे और ये बात प्रभु के उसके कानों में प्रभु के सारे सामर्थ्य के काम तक आ गई थी, वो गूंजने लगी थी, जो उसने उन सारे कार्यों के द्वारा से उसके विश्वास को बढ़ाया था। इसीलिए
जब प्रभु यीशु मसीह दिन अंधे बरतमई के पास से गुजर रहे थे बड़ी भीड़ के साथ, लोग तो जय जयकार कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ के अंदर एक बड़ी आवाज़ को सुना जो बड़ी चिल्ला रहा था, जो पुकार रहा था, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और अंधे बरतमई को जो लोग रास्ते में बैठा देते थे आने जाने वाले से भीख मांगने के लिए, उसकी आवाज़ को प्रभु यीशु मसीह ने सुना, उसकी चिल्लाहट को प्रभु यीशु मसीह ने सुना। यीशु मसीह ठहरा और लोगों ने जबकि उसको मना भी किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ठहर के उसको बुलाया और वह जब यीशु मसीह के पास गया और जब पहुंचा तो उसने अपने दर्द को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उसके दर्द को इस बड़ी भीड़ के अंदर सुना, उसकी पुकार को सुना, उसकी चिल्लाहट को सुना और यीशु मसीह ठहर करके उसके जीवन से बातचीत करता है, उससे पूछता है तू क्या चाहता मैं तेरे साथ करूं। और प्रभु उसने अपने विश्वास को उसके सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट किया। यीशु मसीह उसके विश्वास को देख करके, उसकी चिल्लाहट को देख करके, उसके दर्द को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया किया और प्रभु ने अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराया और उसकी तकलीफ को दूर किया कि वो देखने लगा। आज प्रभु यीशु मसीह तरह से हम लोग की चिल्लाहट को, हमारी पुकार को सुनता है, हमारे बीच से गुजरता है। बल्कि दुनिया की एक बड़ी भीड़ में हम होकर के चलते हैं, लेकिन ऐसे समय में प्रभु इस भीड़ के अंदर ऐसे लोग की आवाज़ को सुनता है जिसके अंदर दर्द है, जिसके अंदर कोई पुकार है, जिसके अंदर कोई चिल्लाहट है, जो प्रभु के सामने अपने आप को ले जाना चाहता है, जो प्रभु के सामने अपने दर्द को रखना चाहता है। और प्रभु उसकी आवाज़ को सुनता है, उसके दर्द को देखता है, उसके पुकार को देखता है और ठहरता है और उसकी चिल्लाहट पर प्रभु अपने अनुग्रह का प्रकाश करके उसकी तकलीफ को दूर करता है। इसी तरह से प्रभु हम सबों के साथ जीवन में बड़े बड़े काम करता है ताकि हमेशा हम प्रभु के साथ अपने जीवन में चले। और ये सच है कि प्रभु पर विश्वास करने वाला कभी जीवन के रास्ते में किसी बात से निराश नहीं होता है, कि प्रभु उन लोग को संभालता है। एक समय की बात है जब प्रभु की कौम बनी इसराइल, प्रभु की प्रजा बनी इसराइल जब मिस्र देश के अंदर बहुत सालों से गुलामी में थी और कितना उसको तकलीफ इस परमेश्वर की प्रजा को मिलता था, कितना कष्ट मिलता था, कितनी तरह से उनको सताया जाता था, कितनी समस्या का सामना इसराइल को करना पड़ता था। लेकिन ऐसे समय में प्रभु ने हमेशा उनकी चिल्लाहट, उनके परिश्रम को, तकलीफ को देखा। और वचन कहता निर्गमन की पुस्तक में उसका 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर इनकी तकलीफ को देखता, उनके परिश्रम को देखता, उनके कष्ट को देखता, उनकी चिल्लाहट को देखता है, तो ऐसे समय में परमेश्वर उनके जीवन से बातचीत करने से पहले, उनको उस गुलामी से निकालने से पहले परमेश्वर मूसा के द्वारा से बातचीत करता है और मूसा को उनके लिए ठहराता है कि परमेश्वर मूसा के माध्यम से कौम बनी इसराइल को, अपनी प्रजा को मिस्र देश गुलामी से निकाल करके एक ऐसे देश में ले जाना चाहता है जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहे। धन्यवाद देते हैं कि गुलामी में भी जब हम रहते हैं, गुलामी में भी जब हम कष्ट उठाते हैं, गुलामी के अंदर जब हम बहुत असहाय हो जाते हैं, तमाम तरह की परिश्रम, तमाम तरह का समस्या हम लोग के जीवन के सामने आती है, ऐसे समय में भी प्रभु हमारे दर्द को, हमारी पुकार को सुनता है और हमारे लिए प्रभु कोई ना कोई को जरिया बनाता है, किसी को ठहराता है जिसके माध्यम से हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हो, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए और परमेश्वर किसी के माध्यम से हमारी आवाज़ को दूर करता है, हमारी तकलीफ को दूर करता है, हमारे कष्ट को दूर करता है, हमारी चिल्लाहट को देखता है, हमारी प्रार्थना को देखता है, हमारी दर्द को देखता है, हमारी पुकार को देखता है। और निर्गमन उसका 3 अध्याय में अगर हम वचन पढ़ेंगे 7 का 8 पद में, यहाँ परमेश्वर ने 6 पद से लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से बातचीत करके सारा काम परमेश्वर मूसा के हाथ में सौंपता, उससे पहले 6 पद में लिखा है, निर्गमन 3 का 6 पद में, फिर उसने कहा, हे मेरे पिता, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, मोरी, परिज्जी, हिप्पी,
और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। यहाँ परमेश्वर मूसा के माध्यम से बातचीत कर रहा है और उनके माध्यम से परमेश्वर अपनी कौम बनी इस्राएल की सहायता करवा रहा है और कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने यहाँ भी अपने कौम बनी इस्राएल की आवाज़ को सुना, अपनी प्रजा की आवाज़ को सुना, जो हजारों साल कितने वर्षों से मिस्र देश की गुलामी में थे। और धन्यवाद देते कि प्रभु ने उस गुलामी से उनको वहाँ छुटकारा दिलाया मूसा के माध्यम से। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने अपनी कौम बनी इस्राएल की आवाज़ को, उनकी चिल्लाहट को, अपने लोगों के दुखों को, परिश्रम को, सबको देखा है। और परमेश्वर कहता मैं स्वर्ग से उतर आया और मैं इनके लिए एक ऐसा स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है। परमेश्वर अपनी प्रजा की चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमारी आवाज़ को, हमारी चिल्लाहट को सुनता है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है और हमेशा प्रभु हम लोग को गुलामी से निकाल करके सारी परेशानी से बचाता है। सबसे बड़ी बात, आज परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम लोग के दर्द को देखा, हम लोग की तकलीफ को देखा, हमारे कष्ट को देखा जब हम पापों में पड़े हुए थे। रोमियो उसका 5:8 पद में लिखा, जहाँ पौलुस कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई ऐसे समय में हमारे जीवन प्रकट किया जब हम गुनहगार पापी थे। प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु ने अपने प्रेम को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुनिया में भेजा, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके सलीब पर बलिदान हुआ और जिसने हमारे दुख को, हमारी दर्द को, हमारी चिल्लाहट को देखा और उसने हमको पाप से के दलदल से, उस गुलामी के दलदल से निकाल करके हमें चट्टान पर खड़ा किया, हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु आज भी हमारे दर्द को देखता, हमारी पुकार को देखता है और हमेशा आवाज को सुनता है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम लोग को तमाम कष्टों से छुटकारा देता है। एक और वचन है जिसको चिल्लाहट के ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हम लोग के जीवन से बातचीत किया है और उत्पत्ति की पुस्तक, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात प्रकाश करता है। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय में, जहाँ परमेश्वर ने, वहाँ भी परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके उन लोग की चिल्लाहट को देखता है, वो कैसी चिल्लाहट है। और उत्पत्ति उसका 18 अध्याय जब पढ़िएगा, यहाँ सदोम और मोरा की चिल्लाहट को परमेश्वर देख रहा है और इस चिल्लाहट के अंदर परमेश्वर ने देखा है उतर करके कि यहाँ पर दुख है, तकलीफ तो है, लेकिन सब पाप से भरे हुए लोग सदोम अमोरा में भरे हुए हैं। और ऐसे समय में एक चिल्लाहट है और उस चिल्लाहट को परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलता है। उत्पत्ति उसका 18 के 20 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया है और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। यहाँ पर वचन कहते हैं परमेश्वर ने यहाँ अपने उपस्थिति का एहसास करा रहा है और इब्राहिम से बातचीत भी कराया और किया भी है और बोलता है मैंने अब सदोम अमोरा की चिल्लाहट को देखा है और मैं उतर करके देखूंगा कि उन्होंने कैसा काम किया है। अच्छा काम किया होगा तो उनके लिए अच्छा काम करेंगे, नहीं अच्छा काम किया होगा तो जो प्रभु ने फिर वचन के द्वारा से बातचीत करता है। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में लिखा 24 पद में, फिर परमेश्वर उनकी चिल्लाहट का उत्तर देता है और कहता है तब पर यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों से सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। मतलब यहाँ भी एक चिल्लाहट थी जो परमेश्वर के पास पहुंची, परमेश्वर स्वर्ग से उतरा, इनकी चिल्लाहट को देखा कैसी चिल्लाहट है, लेकिन यहाँ लिखा इनका पाप इतना भर गया था, सदोम अमोरा का पाप, कि सारे लोग, परमेश्वर भी दुखी हुआ। और उसके बाद लिखा परमेश्वर ने आग गंधक गिरा करके पूरे सदोम अमोरा को नाश कर दिया, वहाँ की सारी चीज को नाश कर दिया। आज भी परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर देखता है, अगर कोई तरह का पाप है, हम प्रभु के पास से अगर दूर भागते हैं, हम संसार के अंदर तमाम वातावरण बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सारी समस्या में घिर जाते हैं और जहाँ से परमेश्वर हमको छोड़ देता है और हम तमाम तरह की तकलीफों को झेलता है। इसलिए प्यारे प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमारी चिल्लाहट को देख करके हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है, हमको तमाम कष्टों से निकालता है, हमको नाश होने से बचाता है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर हम पर अपनी दया को, अपने अनुग्रह को हमेशा प्रकाश करके हम लोग को संभालता है। इसलिए प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, उसने हमेशा हम लोग की चिल्लाहट, हमारी पुकार को सुना है। अभी हम लोग ने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह सदोम अमोरा में उतर करके उनकी आवाज, उनकी चिल्लाहट, उनके दर्द को देखा
और देखा उन्होंने कैसा काम किया, और प्रभु ने आग गंधक गिरा करके, क्योंकि वहाँ पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर भी उन पूरे सदोम उमरा को नाश कर दिया। वहाँ भी एक चिल्लाहट थी। परमेश्वर हमेशा चिल्लाहट को देखता है, कैसी हमारी चिल्लाहट है, क्या हम प्रभु से चाहते हैं, क्या हमारी इच्छा है प्रभु से, क्या हम अपने विचार को लेकर प्रभु के सामने आते हैं कि प्रभु हम पर दया करे, और प्रभु दया करता है। एक चिल्लाहट थी, बाइबल लिखा उसने भी पुकारा था, लेकिन अधोलोक से पुकारा था। जब वह दुनिया के अंदर था और उसके साथ एक लाचार आदमी जो उसके मेज के सामने आकर चूर चार खाया करता था। बाइबल लिखी लूका उसका 16 अध्याय में, जहाँ पर एक धनवान और एक लाजर के बारे में वचन दिया गया है, जो संसार के अंदर एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था, जो अच्छे शान से रहता था, खुशी से रहता था, और वहीं पर उसकी डेवड़ी के पास एक लाजर नाम का आदमी रहता था, जो बेचारा बहुत गरीब था, जख्म भरा था, बहुत तकलीफ से था। उसको कोई भी खाने के लिए कोई नहीं पूछता था, और लोग ला करके उसकी मेज के पास आकर के छोड़ देते थे, और वो धनवान अपनी मेज पर बैठ के खाता पीता था। और वहाँ पर जो भी उसके मेज से गिर जाता था चूर चार, वह उससे उठा करके वो लाजर खाता था, अपने पेट को भरता था। उसके ऊपर जो उसके शरीर में जो घाव था, वहाँ पर कुत्ते थे, वह उसको चाटा करते थे, उसको कोई भी देखने वाला नहीं था। और इस संसार में एक धनवान और एक लाजर दोनों जी रहे थे। एक समय ऐसा आया कि देखिए दोनों जन दुनिया से उठाया गया, लाजर भी उठाया गया और धनवान आदमी भी उठाया गया। और जब लाजर को दुनिया से गया तो लाजर को उठा करके लोगों ने अब्राहम के गोद में बैठा दिया। और जब धनवान आदमी दुनिया से गया, जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, तब उसको उठाकर लोगों ने अधोलोक में डाल दिया। और जब अधोलोक में वो धनवान आदमी पड़ा हुआ था, ऐसे समय में उसने आंखें अपनी उठा करके देखा, और क्या देखता है कि लाजर जो है वह अब्राहम की गोद में है, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ वहाँ पर रह रहा है। और ये धनवान आदमी उससे अधोलोक के अंदर तड़प रहा है, कष्ट में तड़प रहा है, क्योंकि वहाँ पर आग और गंधक है, और उस जगह पर तड़पता है। और ऐसे समय में उस धनवान आदमी से वो बोलता है, उस अब्राहम की गोद में लाजर से बोलता, अब्राहम से बोलता है वो धनवान आदमी, उसको किसी तरह से मेरे पास भेज दे, ताकि वो पानी में अपनी उंगली को भिगो करके मेरे जीभ पर रखे, जिससे मेरी जीभ ठंडी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। और लिखा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में 16 का 23 पद से यहाँ पर लिखा है। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहाँ पर अब्राहम उस धनवान आदमी से बातचीत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसको भेजे और वो पानी में अपनी उंगली को भिगो करके मेरे जीभ पर रख के हमारे तड़प को दूर करे। वो पुकार रहा है अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम की गोद में उसे लाजर को देखता, जो दुनिया के अंदर कितने कष्ट रह करके उसने झेला, और तब उस धनवान ने कभी उस पर दया नहीं किया, न तरस आया। और ऐसे समय में जब वो देखता है कि वो आनंद और शांति के साथ अब्राहम की गोद में लाजर रह रहा है, ऐसे समय उसको पुकारता है, लेकिन अब्राहम साफ उसको इनकार कर देता है। यहाँ भी एक पुकार है, एक दर्द की पुकार है, एक कष्ट की पुकार है, लेकिन अधोलोक में पड़े हुए पुकार है। उसने संसार के अंदर रहते हुए कभी नहीं पुकारा, लेकिन जब दुनिया से पूछ किया तो उसको अधोलोक मिला, जहाँ पर कष्ट था, जहाँ पर तमाम तरह की समस्या थी, जहाँ पर रोना दांतों का पीसना था। ऐसे समय वो अब्राहम को पुकारता है कि लाजर को वह भेज दे। और प्रभु यहाँ पर वचन बताता है कि आज दुनिया के अंदर कितने लोग हमारे सामने, हम संसार में कितने आनंद के साथ, खुशी के साथ रहते हैं, कितने तरह से हम आनंद मनाते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे आसपास, कितने गरीब लोग भी रहते हैं, कितनी समस्या से भरे रहते हैं, कितने कष्ट से भरे रहते हैं। और ऐसे समय में हम लोग अपना आनंद मनाते, लेकिन किसी गरीब को दया नहीं करते। आज के जमाने के अंदर कोरोना महामारी से कितने संसार के अंदर बेचारे तमाम तरह से तरस रहे, तमाम तरह से कष्ट उठा रहे, तमाम के सामने जीवन की समस्या है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। कितने लोग की नौकरी चली गई, कितने लोग का जीवन समस्या के, कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग के सामने कितनी समस्या है। आज दुनिया में बहुत से लोग आनंद के साथ रहते हैं, धनवान लोग कितने संसार के अंदर आनंद के साथ है, लेकिन
वो गरीब लोग, कितने तरह के तकलीफ लोग, कितने लाचार लोग इस समस्या में तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु उन सबों को भी हिम्मत और ढाढ़स देता है, शांति देता है, उन लोग को भी संभालता है। और वचन बोलता है कि ऐसे समय में परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा करके आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हम लोग के जीवन में अपने वचन के माध्यम से बातचीत करता है कि दुनिया की क्या हालात है, दुनिया में कैसे लोग पाए जाते हैं। एक तरफ धनवान है, एक तरफ लाजर है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद परमेश्वर ने एक को अपनी गोद में लिया, अब्राहम की गोद में लाके उसको शांति, खुशी दिया, आनंद दिया, और एक को अधोलोक में डाला जो तकलीफ से भरा था। आज प्रभु हम लोग के जीवन के सामने, जो हम लोग को जीवन में जीवन देने आया, हमको नरक से निकालने के लिए आया, हमको आनंद देने के आया, हमको शांति देने आया, हमसे प्रेम करने आया, हमसे खुशी देने आया, हमको क्षमा करने वाला देने आया। आज हम क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, ताकि प्रभु हम लोग को शांति के साथ आगे बढ़ाए और एक दिन प्रभु की बादशाहत में शरीक हो। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमेशा हम प्रभु से प्रार्थना विनती करें, प्रभु इस जमाने के अंदर हमारी चिल्लाहट को, हमारी पुकार को, हमारी दर्द को सुने, जिससे हम प्रभु के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा सके और प्रभु की महिमा का कारण। प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा हम लोग की आवाज को, हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को जो सुनता है, वही प्रभु यीशु मसीह जो सारी दुनिया का सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता बन करके संसार में आया, मनुष्य बन करके, जिसने हमारे पापों को आज से अपनी जान क्रूस पर दिया। उसी प्रभु के लिए जो आज से 2000 साल पहले बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, जो भी उसके पास आया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना विनती को सुना, उनकी चिल्लाहट को देखा, उनकी पुकार को देखा, उनको दर्द को देखा, उन पर तरस खाया, उनकी सारी समस्या समाधान किया। लेकिन उसी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक समय वही समाज के लोग, वही दुनिया के लोग, उस जमाने में जब प्रभु सब पर दया करता था, तमाम लोग उस जमाने के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक समय चिल्लाए थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उस टाइम पापी ठहराया। तो दया करने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पापी ठहराया। अपनी चिल्ला करके, अपनी चिल्लाहट में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने शरीर पर चढ़ाने के लिए लोगों ने पिलातुस के सामने अपनी बात को रखा। इसी लिखा वचन के अंदर एक बड़ी चिल्लाहट की यहाँ पर आवाज हो रही है, जो सारे संसार का सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह संसार मनुष्य का रूप लेकर के आज से 2000 साल पहले आया, जिससे बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। उसी प्रभु के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी आवाज आ रही है, जिसके लिखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और यहाँ पर 20 आयत से अगर वचन में पढ़ते हैं, लिखा महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। और पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपत्ति हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ, तुम भी जानो। यहाँ वचन ही बताता मत्ती रचित सुसमाचार में 27 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह को जब पिलातुस की अदालत में खड़ा किया गया, वहाँ पर पिलातुस ने देखा उसके अंदर कोई भी ऐसा दोष नहीं जो सलीब पर चढ़ाया जाए। लेकिन उस जमाने के लोग, महायाजक लोग, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार लोग, पुण्य लोग, ये सब लोग अच्छा काम जो प्रभु यीशु मसीह करता था, धर्म के काम करता था, लोगों पर दया खाता करता था, उनकी चिल्लाहट को देखता, उनकी पुकार को देखता था, उसे छुटकारा दिलाता था, लोगों को पसंद नहीं आया। लोग तो उस जमाने के अंदर ही चाहते थे जो जैसा वैसे ही रहे और हम संसार में अपना नाम कमाए, हम सबको दबा के रखे, गरीबों को दबा के रखे, दुख से भरे हुए लोग दबा के रखे। इस कारण से उस समय प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस अदालत में खड़ा था, पिलातुस ने पूछा था कि किसको छोड़ा जाए। एक तरफ बरअब्बा डाकू था, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह था। लोगों ने बरअब्बा डाकू को पसंद किया, यानी गलत को पसंद किया, लेकिन जो हमारा उद्धार करता था, दया करने वाला था, उसको पसंद नहीं किया। और लिखा यहाँ पर 23 पद में, हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वो भी चिल्ला चिल्ला कर, यहाँ भी एक चिल्लाहट है जो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। और इस चिल्लाहट के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लोग पापी ठहरा रहे हैं। इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में लिखा है, 5 के 21 पद में लिखा है, वह पाप से अज्ञात था, लेकिन उसको लोगों ने पापी ठहराया। 2 कुरिन्थियों 5 के 21 पद में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, इन्होंने अपनी चिल्लाहट में प्रभु यीशु मसीह को पापी ठहरा करके उसको सलीब पर चढ़ाया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को वास्ते सलीब पर बलिदान हुआ, जिससे जो मारा गया, जो गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आज अपने पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से बहुत जल्द दुनिया में राज और न्याय करने के लिए आने वाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले दया करने वाला, तरस खाने वाला, हजारों साल पहले परमेश्वर हमारे लिए हमको गुलामी से छुटकारा दिलाने वाला, वह परमेश्वर हम हमेशा अपने प्रेम को, अपनी दया को आज भी हम लोग के जीवन बनाए रखता है। हमारी चिल्लाहट को देखता है, हमारी तकलीफ को देखता है, और आज भी हमको तमाम परेशानियों से निकास करता है, हमको हमेशा अपने आगे बढ़ने में सहायता करता है। जिस प्रभु को दुनिया के लोगों ने सलीब पर चिल्ला चिल्ला कर चढ़ा दिया, उसको पापी ठहरा दिया, वही प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता बनकर दुनिया में आया। इसलिए वचन में लिखा है, जिन्होंने उसके महान प्रेम पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें भी अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो संतान परमेश्वर के समक्ष आती है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करती है, वो संतान की आवाज को सुनता है, दर्द को देखता है, और एक दिन सारे कष्टों से छुटकारा देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी अपनी जिंदगी में किसी बात से भी निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। अपने परिश्रम को हमेशा, चाहे छोटा करते हैं चाहे बड़ा करते हैं, हमेशा जारी रखिए, ताकि हमेशा प्रभु आपके दर्द को देखे, एक दिन आपको महान बनाए, ऊंचाई के मार्ग को ले चले, ताकि अपने जीवन के द्वारा से और भी हम परमेश्वर की महिमा को लोगों के बीच प्रकट कर सके। प्रभु हमेशा दर्द का सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा कष्ट से निकालने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के जीवन के सामने इतनी समस्या परेशानी आई, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने हमेशा बनाए रखा, और अंत में परमेश्वर उस पर दया किया, उस पर तरस खाया, उसको आशीष से भरा, संसार में महान बनाया। आज भी वही परमेश्वर है जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम लोग के जीवन से बातचीत करता है, हमेशा हम लोग को आगे बढ़ने में सहायता करता है। हमेशा प्रभु हम लोग को हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है, साहस देता है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। जब हम उसकी उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में, अपनी आत्मा में करते हैं, हमारा विश्वास को प्रभु बढ़ाता है कि प्रभु हमारे साथ है, जिसने अपनी प्रतिज्ञा और वाचा हम लोग के जीवन के सामने हमेशा पूरा किया कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खाते, हमेशा प्रभु हम लोग के साथ रहता है, हमारी प्रार्थना विनती को सुनता, हमारे दर्द को देखता है, हमेशा हमारी चिल्लाहट को ग्रहण करता है, और हमको तमाम समस्याओं से, हर एक परेशानी से निकाल करके आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु ने हम लोग के जीवन के अंदर दिया है, खाली चिल्लाहट के ऊपर, ये चिल्लाहट है जो प्रभु के सामने हम दुनिया में चिल्लाते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के सामने अपनी चिल्लाहट को बनाए रखे, तो एक न दिन प्रभु हमारी चिल्लाहट का, हमारी पुकार का, हमारी दर्द का उत्तर देता है। संसार कभी भी हम लोग को कभी भी तकलीफ से नहीं निकाल सकता, किसी कष्ट से नहीं निकाल सकता, लेकिन प्रभु हमारे लिए हमेशा जरिया बना करके रखता है, ताकि हम विश्वास में अपने कदम को आगे बढ़ाए। हमारी चिल्लाहट को निकालता है, हमको खुशी देता है, हमको प्रेम देता है, हमको आनंद देता है। हमेशा प्रियो प्रभु के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए, अपने आप को हमेशा प्रभु में बनाए रखिए, कभी किसी बात से नर्वस नहीं होइए, हमेशा प्रभु के प्रेम को और उसकी खुशी को हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में पहचानते हुए हमेशा हिम्मत के साथ, ढाढ़स के साथ, साहस के साथ अपने कदम को आगे बढ़ने में सहायता करिए। जिस दिन हमारे अंदर इस तरह का विश्वास आ जाता है कि प्रभु हमारी पुकार को, हमारे दर्द को, हमारी चिल्लाहट को सुनता है, उस दिन प्रभु हम लोग को हिम्मत भी दे देता है, ताकि हम संपूर्ण उस पर भरोसा रखें और विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं। तभी प्रभु हम लोग के जीवन में आनंद देता है, खुशी देता है, हंसी देता है, और हम प्रभु की महिमा का कारण बनते हैं। और दुनिया को तो हम बता सकते हैं कि हम सच्चे और जिंदा मसीह के बेटे और बेटियां हैं, जिसने हमको अंधकार और पाप के दलदल से निकाल करके हमें चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को मजबूत किया और हिम्मत ताकत दिया, हमेशा आगे बढ़ाता है, हमको गुलामी से निकालता है, हमको ऐसे देश में ले चलता है जहाँ पर खुशी रहती है, आनंद रहता है, शांति रहता है। परमेश्वर अपनी कौम बनी इस्राएल को उस मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके एक ऐसे देश में ले गया जहाँ पर दूध और शहद की नदियां बहती है। हजारों साल, कितने साल तक इस्राएल जाति, परमेश्वर की प्रजा कौम बनी इस्राएल हमेशा चिल्लाती रही, और प्रभु ने उसके परिश्रम को, उसके दर्द को, उनके कष्ट को देखा, और वहां से निकाल करके आनंद के घर में प्रभु ले गया, और उन्होंने खुशी को पाया। उसी जगह पर एक और चिल्लाहट को हमने देखा कि सदोम और अमोरा की भी चिल्लाहट थी, परमेश्वर उस चिल्लाहट को भी देखा, लेकिन सदोम और अमोरा के अंदर परमेश्वर की दया की चिल्लाहट नहीं थी, बल्कि उस नाश की चिल्लाहट थी, क्योंकि वहाँ पाप इतना भर गया था, वहाँ पर तमाम तरह गलत काम होते थे, तमाम तरह की चोरियां होती थी, तमाम तरह के गंदे काम होते थे,
जिस कारण से परमेश्वर भी उस गलत काम को देख, उस पाप को देख करके प्रभु उसके मन में घृणा आ गई और लिखा है कि आखिरकार परमेश्वर ने आकाश से आग गंधक को गिराया और पूरा सदोम गमोरा को नाश कर दिया। उस चिल्लाहट का मकसद था नाश होना, और पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा वो शहर पूरा नाश कर दिया गया। और वहां पर परमेश्वर ने अपने काम को दिखलाया। इसलिए नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से तमाम चिल्लाहट को दे सुना, उन पर दया किया, उन पर तरस खाया और उनको तमाम तकलीफ से निकास किया। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा लोग पर दया करता था, उसी के लिए लोगों ने चिल्ला उसको सलीब पर चढ़ाया और उसको पापी ठहराया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। आज प्रभु हम लोग को संभालता है, हमेशा आगे बढ़ाता है, हमेशा चिंताओं पर हम लोग को विजय दिलाता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है। क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम संसार में है, वो हमेशा हमारी चिंता करता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है। आप जो भी कल्पनाएं बनाते हैं, आप जो भी भावनाएं बनाते हैं, अगर प्रभु के सामने रखते हैं तो प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करता है। लेकिन हमको जीवन के अंदर धीरज भी रखना है। कोई काम कभी हमारी प्रार्थना को उत्तर जल्दी जल्दी मिल जाता है, कभी हमारी प्रार्थना को उत्तर में टाइम लगता है। लेकिन प्रभु हमारे उस उत्तर के अंदर, उस टाइम के अंदर हमारे विश्वास को देखता है कि क्या सच में प्रभु हमारी प्रार्थना विनती को सुनता है, क्या सच में उत्तर देगा। और हमारे धीरज का फल, बाइबल कहती है हमारे धीरज का फल मीठा होता है, और प्रभु उनको धीरज का फल मीठा करके देता, कामयाबी देता है। तो आनंद के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा करके हम प्रभु की महिमा का कारण बन सकते हैं। प्रभु आज के वचन पर भी और सभी सुनने वालों पर प्रभु का अनुग्रह आशीष का हाथ बनाए रखे। सभी भाई बहनों को आशीष दे, हर एक के परिवार को आशीष दे, हर एक की चिंता को दूर करे, हर तकलीफ से, बीमारी से हर एक को चंगाई दे। हमारा देश पर भी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति बनी रहे। जितने देश को संभालते नेतागण लोग, प्रभु उन सबों को भी आशीष दे, बुद्धि दे, ताकि प्रभु के भय में हो करके वो देश की रखवाली करे। हर एक जगह प्रभु का अनुग्रह और आशीष का हाथ हो। कोरोना महामारी से दुनिया के अंदर जितना हाहाकार मचा है, इसको प्रभु जड़ से खत्म करे, ताकि लोग खुशी के साथ, सुकून के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ रह सके और लोग आनंद के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा सके। हर एक का तकलीफ से प्रभु छुटकारा दे, हर एक पर प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का आशीष का हाथ है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, जितने लोग उपस्थित उन सबों को भी आशीष दे, जो लोग वचन को सुनते हैं उन सबों पर भी प्रभु का अनुग्रह और आशीष का हाथ बनाए रखे। हर चिंता को दूर करे, हर तकलीफ से निकास करे और आपके विश्वास ईमान को मजबूत करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान जीते दयालु परमेश्वर, सारे आशीषों के देने वाले, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय दिया कि तेरे प्रिय लोग के साथ इकट्ठे होकर के तेरे जिंदा पवित्र वचन को बांट सके। हम धन्यवाद देते हैं, अपने वचन के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, वचन से अपने लोगों की प्रार्थना विनती को सुनता, चिल्लाहट को सुनता, प्यारे प्रभु पुकार को सुनता, दर्द को सुनता, सारे कष्टों छुटकारा देता। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। सभी भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ बनाए रखिए। हर एक के दुख तकलीफ, परेशानी, कठिनाई को दूर करिए, हर एक के विश्वास ईमान को मजबूत करे। जो वचन आज प्यारे प्रभु हम लोग के सामने रखा है, इस वचन के माध्यम से हर एक लोग आशीषित किए जाए। वचन के द्वारा से लोग समझे कि सचमुच तो हमेशा हम लोग के बीच रहता है, हम लोग की दुख तकलीफ को देखता है। हर एक पर तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ, तो हर एक के परिवार, सभी रिश्तेदारों पर भी तेरा अनुग्रह और आशीष का हाथ है। हमारे हिंदुस्तान पर भी अपने आशीष के हाथ को रखे। नेतागणों को भी आशीष दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि तेरे भय में होकर के ये देश की रखवाली कर सके। हम सबों पर तेरा आशीष का हाथ हो। आज दिन भर हम सबों के साथ हो। सारी बातों के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को तेरे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत, हिफाजत अब से लेकर खुदा यीशु मसीह को दोबारा आने तक सभी मसीह भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे।